So yesterday we started your new section 3.5 linear dependence and independence. So any doubt, or let me recall? Let me recall it. So क्या definition थी बताओ भाई? What is linear dependent vector? How to check? A set of vectors. I am just recalling. A set of vectors. नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिलता है is said to be linearly dependent LD, है ना? If क्या था? If there exists a non-trivial linear combination. If there exists, this is a symbol. If there exists a non-trivial linear combination, इसको मैं LC लिखता हूँ शॉर्ट में, LC linear combination of U1, U2, UN that equals zero vector. Zero. है ना, that equals zero vector. ये था, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग सपोज 1 0 एंड 0 1, ये टू वेक्टर्स है. I want to check whether they are linearly dependent or independent. So what I will do, I will take a linear combination alpha 1 0 plus beta 0 1. I will put equal to 0 0. Now I will solve. So you will be getting how much? Alpha plus beta. क्या आएगा यहाँ पर? Alpha and alpha into 0 plus beta alpha beta. ये तो आएगा is equal to 0. So you got alpha is equal to 0, beta is equal to 0. That means you are getting only a t. This is what? Non-trivial means non-zero. Trivial means 0. So this is a trivial combination. This is a trivial linear combination. है ना? Only 0 solution is possible. 0 के अलावा if you take any other value, it will not come 0. So this vector is what? L I. है ना? Is it clear? Yes, sir. और Yes, LD sir. के yes. और LD के लिए क्या करूं मैं? Suppose here on the right I am taking one. Suppose I am taking LD. I am taking a set of vectors. Suppose 1, 2 and suppose 2, 4. I want to check LD. So what I will do? Alpha times this plus beta times this. This should equal, put this equal to 0 0. Now solve it. So you will be getting how much? Alpha plus 2 beta equal to 0 and 2 alpha plus 4 beta. जरा सॉल्व करना है सिस्टम को, क्या आएगा बताओ? 2 - 1 कर दें, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें क्या आएगा? अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल, ये तो बचेगा. Yes sir. भाई ये Yes, sir. you will be getting only this, and now you know कि alpha is equal to -2 beta. So it means what? It means कि I can take any non-zero value also. If I am taking beta 1, alpha will be -2. So this means what? कि you have this means what? Non-trivial, है ना? It means I can write 1 into 1, 2 plus -2 है ये, तो -2 times 1, 2 plus 1 times 2, 4. It will be coming 0 0. चेक कर सकते हो आप. So this is what? It is LD. Okay. Even without calculation you can see here कि the second vector is a multiple of first one. 2, 4 क्या है? Multiple of first है कि नहीं है? देखो this Yes, sir. 4 is a 2 times of. तो यहीं पर आप देख सकते हो sometimes अगर 2 vectors को तो एटलीस्ट विजुलाइज कर ही सकते हो कि it is depending on first. तो ये आपके पास LD वेक्टर आएगा. जब भी सॉल्व करोगे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा अल्फा बीटा दे विल बी गिविंग some non-zero values also. Is it clear?
तो ये हमारी डेफिनेशन थी इसकी, यू कैन राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी, है ना। तो आपका एल आई क्या हो जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं कि एल आई, ये आपकी विच इज योर डेफिनेशन 3.5.3, a set of vectors u1 u2 and so on, un of vectors called li, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ li, है ना, li if no non trivial, this is important, no non trivial, no non trivial linear combination of u1 u2 un equals the zero vector, equals the zero vector, है ना। कोई नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट ही ना करे, नो नॉन ट्रिवियल। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, देखो इसमें आपके पास अल्फा बीटा जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, इट विल नेवर जीरो, है ना। सो इट इज एल आई। क्लियर है डेफिनेशन, है ना। सो व्हाट अबाउट एन एम्प्टी सेट बाय कन्वेंशन। कन्वेंशनली हम कह सकते हैं एन एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट जिसमें कुछ नहीं है, ये क्या हो सकता है, इज कंसीडर्ड टू बी, क्या होगा बताओ। इसको अगर मैं एम्प्टी सेट को जीरो पुट करूं तो कब जीरो होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, इट इज एम्प्टी। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लाई में लूंगा मैं अल्फा इनटू समथिंग, दिस शुड इक्वल टू जीरो कब होगा, व्हेन अल्फा इज जीरो, ओके, बट यू हैव नथिंग हियर। So by convention an empty set is considered to be Li। ये सब बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब वाइवा होगा, या रिटन में अगर हुआ आपको यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो यू में गेट इन 1 नंबर 1 मार्क क्वेश्चन। एम आई ऑडिबल जयदीप सिंह? यस सर। यस सर। बिलाल जफर है आज नहीं? यस सर। हाँ गुड। बाकी लोग कहाँ हैं? अब वानी कहाँ है, वानी, एम एस वानी? यस सर। यस सर। अब्दुल यस रब सर। नहीं आए भाई, अब्दुल रब कहाँ है आजकल, अब्दुल रब नहीं आ रहे, क्यों वानी? यस सर बोलिए। अब्दुल रब आपके नेबर है क्या? अब्दुल रब तबीयत खराब है सर उनकी। ओहो, उनसे कहना कि सर आपका हाल चाल पूछ रहे थे और कह रहे थे क्लास में आइए, ठीक है। ओके। सो एन एम्प्टी सेट इज कंसीडर्ड टू बी एल आई, है ना। उसकी वजह क्या है कि भाई आप लेंगे अल्फा और एम्प्टी सेट है, मतलब यू हैव नथिंग हियर एंड यू वांट टू पुट इक्वल टू जीरो। तो कब हो सकता है ये, ओनली जब अल्फा इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ओके भाई, ये तो दे देगा। तो इसलिए हम बाय कन्वेंशन कहते हैं, कुछ सम थिंग्स वी कंसीडर बाय कन्वेंशन की जो डेफिनेशन, इसलिए तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी एल आई। सो नाउ यू नो कि हाउ टू चेक लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, है ना। ये जो मैंने आपको मेथड बताया ये वही है, हाउ टू चेक। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये इट इज द प्रोसेस हाउ टू चेक। तो वो आपको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें दे रखा है बुक में कि हाउ टू चेक लीनियर डिपेंडेंस and linear independence. So what you will do, just take a set of vectors, multiply by some scalars, put it equal to 0 and solve. If all alpha, beta, gamma or delta coming 0, then it will be linearly independent, and if some of the scalars coming non-zero, it will be LD, है ना। ये प्रोसीजर है, ये आप पेज नंबर 88 पे पढ़ सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया वैसे आपको। एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल 3.25 पेज नंबर 88। check
whether the following set of vectors is LD or LI, is LD or LI। एक आपको सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है 1 0 1 1 1 0 1 minus 1 1 1 2 minus 3। okay, so how I will check? I will, now you have 4 vectors over V3 है ना, you know this is the vector of V3 R3, so I will take alpha 1 0 1 plus beta 1 1 0 प्लस गामा 1 माइनस 1 1। 4 वेक्टर तक मैं डेल्टा भी ले सकता हूँ, ज्यादा होंगे तो आप अल्फा 1 अल्फा 2 ले सकते हैं। इट इज अप टू योर चॉइस, यू कैन टेक एनी वेक्टर्स है ना, एनी स्केलर्स। सो प्लस सपोज आई एम टेकिंग फोर्थ वेक्टर डेल्टा, 4 स्केलर डेल्टा 1 2 माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 0 0 ट्रिपलेट्स में ध्यान रखना, ट्रिपलेट्स है यहाँ पे। कभी आप सोचे कि 4 वेक्टर हैं तो 4 0 आ जाएगा, बिकॉज दे आर द वेक्टर्स फ्रॉम V3 है ना। सो आई विल टेक ट्रिपलेट्स। कभी आप सोचेंगे 4 0 आएंगे, क्योंकि जो 0 आएगा दैट विल बी आल्सो फ्रॉम द सेम सेट V3, सेम वेक्टर स्पेस। So now I will solve it. So you will be getting 1 2 3 4 equation, of course. So first equation, what is the first equation? Alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to 0. Second equation is alpha into 0 0 beta plus into 1 beta minus gamma plus 2 delta is equal to 0. Third equation is how much? 3 equations आएंगी क्या? अच्छा 3 equations आएंगी, okay. 4 unknowns है। Alpha beta is 0 plus gamma, so you got alpha plus beta is 0, third position gamma minus 3 delta. So you got 4 unknowns, 3 equations है ना, 4 unknowns 3 equations। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर है ना, हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यू विल बी हैविंग, इसे सॉल्व किया हुआ है इन्होंने बुक में, तो आप जब सॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि सेम नंबर ऑफ नोड्स आपके पास ज्यादा हैं, यू आर सी हैविंग 4 अननोन्स, इक्वेशंस कम है। सर सबको ऐड कर दीजिए ना, वो खत्म हो जाएगा। सबको ऐड कर दें? यस सर। क्या खत्म हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा वाला। डेल्टा। अच्छा चलो, तो तीनों को ऐड कर दे रहे हैं सर कुछ हल्का हो जाएंगे। चलो हल्का कर दो, चलो तो ऐड कर दे रहे हैं। क्या आएगा बताइए ऐड करके, एडिंग ऑल 3, बताओ बिलाल सर साहब। डेल्टा वाले टर्म कैंसिल बनाएंगे तो क्या जाएगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा 2 बीटा और प्लस गामा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है ना। एक क्वेश्चन मिलेगी, 0। ये एक क्वेश्चन मिली। यस सर। अब यहाँ पर और हम सॉल्व करेंगे इसमें अभी। अब क्या करें, या तो अल्फा रिमूव कर दो। अब अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन है ये, और बीटा गामा डेल्टा में है ये। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो अब क्या करा जाए बताओ भाई। अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो, अब चेंज करना पड़ेगा ना। अल्फा को बीटा गामा के टर्म में ला के रखिए यहाँ पर, तो इक्वेशन रिड्यूस होंगी आपकी। क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वी विल नॉट गेटिंग यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ नोन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो इसको सॉल्व करके आपके पास ये आ रहा है, देखो अल्फा इज 5 डेल्टा। किसी आपको एक अननोन के टर्म में सॉल्यूशंस लाना पड़ेगा। बीटा विल बी कमिंग -4 डेल्टा एंड गामा विल बी कमिंग -2 डेल्टा। सबको अगर हम डेल्टा के टर्म में ले आए तो ये सॉल्व होके आएगा। तो डेल्टा क्या है यहाँ पर? डेल्टा फ्री वेरिएबल है ना। डेल्टा सभी फ्री वेरिएबल्स यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल नंबर्स हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू डेल्टास। तो नाउ इन पर्टिकुलर फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 1, व्हाट विल हैपन? अल्फा विल बिकम 5, beta will become -4 and gamma will become -2. So means you are getting a non-trivial combination है ना। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन नॉन ट्रिवियल मिल जाएंगे। सर हम ऐसे भी सर हम इसमें सर ये जो है ना 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल 0, सर इसमें गामा को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो माइनस गामा बाई 2, और सर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी सर। हाँ कर सकते डेल्टा हो। और गामा में एक रिलेशन आ जाएगा। हाँ ऐसे रिलेशन बना के जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे ना,
तो आपके पास ये कुछ रिलेशन इस टाइप के आएगा, अल्फा बीटा गामा में ऐसा आ रहा होगा, या डेल्टा निकाल दोगे तो अल्फा में टर्म में लिख दो, तो यू विल बी गेटिंग यस सर, द ये तो आ ही रिलेशन इन गया टर्म्स सर। ऑफ दिस, है ना। तो एक वेरिएबल हमेशा उसमें एज ए फ्री वेरिएबल रहेगा आपके पास, ये आप चेक कर सकते हो, है ना। वैसे ही हम क्या करते हैं, सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं नंबर ऑफ नोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है। तो आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, तो 4 - 3 = 1। तो ये जो 1 होगा, ये 1 फ्री वेरिएबल होगा आपका, मतलब इसको आपको कुछ वैल्यू देनी ही पड़ेगी, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली व्हाट, सो यू गॉट नॉन ट्रिवियल, सो दैट मीन्स दिस सेट इज व्हाट, LD। क्या है ये, LD है। बल्कि आगे आपको मैं रिजल्ट डिस्कस करूंगा कि whenever you have more number of vectors in Vn, that it will always LD। जैसे आपके पास ये 3 वेक्टर्स थे, लेकिन ये आपने लिए नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे, 4, और बिलोंग्स टू V3, तो ये हमेशा LD ही आएगा, है ना। जब भी आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द सेट ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, ये डायमेंशन 3 है, डायमेंशन की बात मैंने अभी नहीं करी, इसलिए मैं इस रिजल्ट को आगे डिस्कस करूंगा। तो आपके पास वेक्टर्स 4 थे यहाँ पे और इसकी डायमेंशन 3 थी, तो इट वाज मोर देन द डायमेंशन, तो ये हमेशा LD वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस बात को, चलो, so it is LD। So now next, take some definitions. Geometrically I want to show कि what is the mean of this thing geometrically। क्यों भाई बिलाल जफर, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है? यस सर, वहाँ पे सर ये तीनों, यस सर, वो तीनों जो है ना यहाँ पे फोर वेक्टर्स दे रखे थे ना, उनको ज्वाइन करेंगे तो 3 वेक्टर्स बन जाएंगे, और फिर हम कोप्लेनर की कंडीशन बताएंगे वहाँ पे कि कोप्लेनर से पहले अगर कोलिनियर 3 और की 3 बात से कर ज्यादा लें, है। ठीक। अभी पहले कम की बात करते हैं, कोप्लेनर से पहले कोलिनियर आता है, क्यों, और कोलिनियर से पहले आती है एक लाइन, तो वही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो एक पहले डेफिनेशन देखते हैं, गिवन अ वेक्टर, डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, गिवन अ वेक्टर some vector v which is not equal to 0, suppose non-zero vector, the set of all scalar multiples of v is called a line through v। देखो भाई, what I am saying, suppose you have a vector, one vector is given, some non-zero vector, suppose I have this vector v, suppose for a moment I am taking on R2, suppose, ठीक है, v not zero है आपका, तो it may be somewhere। अब अगर आप कह रहे हैं स्केलर मल्टीपल, you are writing scalar multiple, I am writing a set as suppose, okay, और सेट एस क्या है आपका, अल्फा वी वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर एंड वी पे रेस्ट्रिक्शन वी इज आल्सो नॉट जीरो। तो बताओ ये क्या देगा आपको, इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, व्हाट डू यू डू विद दिस अल्फा? सर ये पॉइंट्स आएंगे सर, हैं? सर अल्फा तो रियल नंबर है सर, अल्फा की वैल्यू 1 2 3 -1 कुछ भी रख देंगे, और हाँ। v तो वेक्टर है सर, तो ये पॉइंट्स तो ये आएंगे, 2 मतलब ये कि डायमेंशन हाँ, का है मतलब ना, आपने जैसे अल्फा अगर 0 लिया तो ये वेक्टर ओरिजिन पे चला जाएगा, यू विल ओरिजिन टेक पे चला अल्फा इज जाएगा। इक्वल टू 1 तो v हो गया, यू विल टेक अल्फा हाफ 2 तो ये यहाँ तक रहेगा, है ना? कोलिनियर नहीं कोलिनियर नहीं, मतलब अभी अल्फा v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा v इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन, यही तो है भाई। ये अल्फा v क्या है, ये आपका एक वेक्टर था, v वेक्टर था, है ना, कुछ भी v वेक्टर था। अगर मैं v मान लो 1 2 ले लूं फॉर अ मोमेंट, सपोज आई एम टेकिंग v इज 1 2 सपोज, ठीक है। तो अब ये तो माइंड करेंगे कि 1 2 x पे y, x पर दिस इज और x एक्सिस y एक्सिस, तो यू गॉट 1 2 ये वेक्टर है। और जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये तो क्वेश्चन, ये तो हो गई लाइन, इसे मैं लाइन लिख सकता हूँ, लाइन, है ना। यस सर। तो ये आपके पास इवन इन v1, इसको मैं v2 कह दूं या r2 या v2 है या v3 ले लें या v1 ले लें, कहीं पर भी ले लो, v1 में क्या होगा आपके पास सिर्फ एक ये है। अब v1 में यू विल बी हैविंग ओनली 1 पॉइंट, सपोज यू हैव ओनली दिस पॉइंट 1, तो इसमें अल्फा v क्या हो जाएगा, द होल लाइन, 0 भी आएगा इस पे, है ना। तो बेसिकली अल्फा v इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन थ्रू v,
है ना, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन आल्सो बिकॉज अल्फा कैन बी 0। तो अल्फा भी आपके पास एक लाइन प्रेजेंट करता है। तो डेफिनेशन जो हमारी नेक्स्ट है, ये तो लाइन की डेफिनेशन होगा इन टर्म्स ऑफ दिस वेक्टर। So if I want to write next definition 3.5.6, page same 89, collinear. So two vectors v1 and v2, they are collinear if one of them lies in the line through the other. क्यों भाई? Is it clear? Two vectors are collinear if one of other vector lies a line through the other. जैसे you have 1, 2. ओके, अब यू नो इस लाइन पे कौन सा वेक्टर लाई कर सकता है? इसी का मल्टीपल, क्योंकि अभी लाइन की क्वेश्चन क्या देखी आपने, अल्फा वी। तो इफ यू हैव वी इज 1, 2, तो आई एम टेकिंग 2v, मान लो 2, 4, तो 2, 4 यही तो लाई करेगा, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे आपके पास। होंगे नहीं होंगे? बताइए। इट इज, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस। है ना? सो इट मीन्स व्हाट, कि यू कैन से कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। इसको अगर मैं डेफिनेशन को उस फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या कह सकता हूं? ये तो कोलिनियर हो गए कि दे आर लाइंग इन द दे आर लाइंग इन द सेम लाइन। तो इस डेफिनेशन से मैं क्या कह सकता हूं? तो दैट मीन्स टू वेक्टर्स, अगर मैं ज्योमेट्रिकली लिख लूं, आर कोलिनियर if and only if one of them is the multiple of other। एक ही बात है नहीं? ये बताओ भाई, जब वो उसका मल्टीपल होगा तभी तो उस लाइन में लाई करेगा। अगर मैं 1, 2 और दूसरा वेक्टर, सपोज आई एम टेकिंग सम न्यू वेक्टर u, सपोज आई एम टेकिंग 1, 0 यू विल बी मार्किंग हेयर, ये आ गया, ये कोलिनियर है क्या? इज इट कोलिनियर? नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि 1, 2 में यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, यू विल नेवर गेट u, है ना? हम कुछ भी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, ये कभी भी 1, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कोलिनियर ही नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि टू वेक्टर्स दे आर लाइंग इन द सेम लाइन, और आई कैन से कि इफ वन ऑफ द वेक्टर इज मल्टीपल ऑफ अदर। एक ही बात है ना? ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। हाँ सर पहले हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ते थे, अब हाँ उसको पीछे करके ऐसे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही कंसेप्ट आपका लीनियर डिपेंडेंट का है। तो अगर कोई वेक्टर आपका, सपोज सम वेक्टर v इज मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, तो वो क्या हो जाएंगे? दे विल बी LD, है ना? भाई LD होगा नहीं होगा, क्योंकि इज डिपेंडिंग। तो यू कैन से कि इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर दे विल ऑलवेज LD वेक्टर्स, दे कैन नॉट बी Li। ये भी कह सकता हूं मैं? नहीं यस सर, वो लीनियरली डिपेंड हो गया। हो जाएंगे नहीं, क्योंकि वन वेक्टर इज डिपेंडिंग ऑन द अदर। कोई भी आप इस लाइन पे कहीं भी वेक्टर ले लो आप, यू कैन ऑलवेज गेट एज अ मल्टीपल। तो आई कैन से कि टू वेक्टर्स आर LD इफ एंड ओनली इफ दे आर कोलिनियर। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गई ज्योमेट्रिकली, एक ही लाइन पे आने वाले सारे वेक्टर LD होंगे। ये मैंने एग्जाम्पल जो आपका भी लिया था फर्स्ट स्लाइड पे, कहाँ गया? ये वही लिया था, देखो ये कोलिनियर थे और LD आए, आपने देखा, चेक करा सॉल्व करके कि अल्फा बीटा नॉन जीरो आ रहे थे। ओके, ये हम थ्योरम प्रूव करेंगे आगे अभी। चलो इसको अब थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, जो बिलाल जफर बात कर रहे थे। तो जीरो इज कोलिनियर विद एनी नॉन जीरो वेक्टर। एक बात और क्लियर है भाई, क्लियरली जीरो इज कोलिनियर with any
नॉन जीरो वेक्टर, ये बात क्या मैं लिख सकता हूं? इज इट ट्रू? जीरो हमेशा Yes, हर sir. वेक्टर का कोलिनियर होगा। आप कोई भी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी प्लॉट कर दो, लेकिन जीरो से हमेशा मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो वो कोलिनियर बन जाएगा। क्यों? कोई वेक्टर कहीं भी ले लो आप, हमने कहा यहाँ ले लें तो आई कैन प्लॉट अ लाइन दिस। तो जीरो इज ऑलवेज कोलिनियर विद एनी नॉन जीरो वेक्टर। इज इट ट्रू? Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी सेट बनाया और उसके अंदर अगर जीरो वेक्टर रख दिया, चाहे आपके पास R2 के अंदर हो बाकी कुछ भी वेक्टर हो, चाहे या आपके पास ट्रिपलेट्स में हो और बाकी कुछ भी वेक्टर हो, वो हमेशा क्या होगा? Linearly dependent. लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा। ये बिलाल साहब आपने सही बात बोली, क्योंकि जीरो जब भी रखेंगे आप, कोई नॉन जीरो वेक्टर होगा वो उसके कोलिनियर हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो क्या होगा? जैसे जीरो आया उसके अंदर, वो सेट हमेशा एलडी हो जाएगा whenever you have a zero vector, क्योंकि जीरो वेक्टर इज ऑलवेज कोलिनियर विद नॉन जीरो वेक्टर। नहीं बात समझ में आई? पीयूष शर्मा कहाँ है आज? पीयूष शर्मा की आवाज नहीं आ रही। वेयर इज पीयूष शर्मा? बताइए पीयूष शर्मा जी। यस सर, सर आ गया। हाँ ये सब बातें पूछूंगा मैं जब वाइवा लूंगा। चलो, यस वाइवा आपका अभी बीच में हो सकता है, कभी भी एक सरप्राइज वाइवा रहेगा आपका। किसी दिन क्लास शुरू करूंगा और सरप्राइज वाइवा लेने बैठ जाऊंगा। सो नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव 3.5.7। तो ये आपको एक इजी टूल मिल गया कि आपके पास किसी ने सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं और उसमें जीरो जीरो भी है, आपसे पूछ रहा है प्रूफ करिए कि एल डी है या एल आई है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इट इज एल डी बिकॉज इट हैज अ जीरो वेक्टर, है ना? कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक वेक्टर लिख देंगे ऐसे, देखिए 0 1 1 1 1 2 एंड एक वेक्टर लिख देंगे 0 0 0, कहेंगे चार ऑप्शन दे देंगे, इट इज एल डी, नॉट एल आई एंड सो ऑन। तो जिसे कंसेप्ट नहीं पता है वो अल्फा बीटा गामा लगाएगा, कम से कम 3 मिनट स्पेंड करेगा, और जिसको मालूम है कि जीरो वेक्टर का मतलब एलडी होगा, वो 2 सेकंड में एलडी पे टिक कर देगा, टाइम सेव कर लेगा। कंपटीशन में यू नीड टू सेव योर टाइम एंड यू नीड टू करेक्ट योर कैलकुलेशन, दोनों चीजें बराबर बराबर लेके चलनी पड़ती है। टाइम सेव नहीं किया, कैलकुलेशन करते रह गए तो भी बेकार, और पता चला कि आपने जो है टाइम सेव करने के चक्कर में कैलकुलेशन गलत कर दी तो भी गलत, नेगेटिव मार्किंग में और लॉस हो जाएगा। तो ये सब ट्रिक्स हैं जो यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट डेफिनेशन कोप्लेनर है ना। तो कोप्लेनर के लिए क्या होता है? तो सपोज पहले उसके लिए एक डेफिनेशन और बताऊंगा मैं, 3.5.7। गिवन टू वेक्टर्स v1 and v2, सपोज you have two vectors v1 and v2 which are not collinear. अब I am taking not collinear, क्लास एंड होगी तो you will continue the class by clicking in the same address। ठीक है भाई, सैटरडे क्लास आपकी पूरी चलेगी आज। So given two vectors v1 v2 which are not collinear, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, सब ध्यान से समझिए इसे। Their span, अब मैं अगर इनका स्पैन ले लूं, स्पैन सेट क्या होता है? बिग ब्रैकेट v1 v2, ये तो होता है स्पैन, क्यों भाई बिलाल? Yes, sir. यही होता है स्पैन सेट। तो their span v1 v2 is called the plane through through v1 and v2। क्या मतलब भाई, क्या लिखा मैंने भाई? जयदीप सिंह राघव बताओ तुम। सर इसको पूरे को पढ़ना है या क्या वो करना है? इसका मतलब क्या समझ में आया ये बताओ। मैंने कहा टू वेक्टर्स हैं v1 सर v2। हाँ सर इसका मतलब ये है कि जो v1 और v2 का जो स्पैन होगा वो ज्योमेट्रिकली एक प्लेन होगा v1 और v2 से हाँ, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है कि दे पास शुड बी होगा जो। कोलिनियर, दे शुड नॉट कोलिनियर, ये ध्यान रखना, है ना? नॉट यस कोलिनियर सर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात ये है, आप इसको विजुलाइज कर सकते हो इजीली।
विजुलाइज करने के लिए हमेशा R2 प्लेन ले लेते हैं बिकॉज वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद R2। मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, सपोज करो 1,0 एंड 0,1 एंड वी नो दे आर, है ना, आई एम टेकिंग टू वेक्टर्स। तो ये कोलिनियर तो नहीं है या कोलिनियर है? कोलिनियर इन द सेंस ये कि इसकी लाइन जो पास हो रही होगी उसमें नहीं लाई करेगा ये। वैसे तो इस लाइन में आ रहा है लेकिन आई कैन नॉट राइट 1,0 एज अ मल्टीपल ऑफ 0। बताओ क्या मैं 1,0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करके 0,1 लिख सकता हूँ कभी? नो सर। है ना, नहीं लिख सकते। तो हाँ, तो इस सेंस में दे आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार एक लाइन ज्वाइन कर दूं मैं, इसमें तो आ रहा है ये है सर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बताया सर जीरो से ये होनी बात चाहिए हाँ, ओरिजिन पासिंग से। थ्रू ओरिजिन है ना। यस एग्जैक्टली, यही बात है। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है सर, कैसे भी? मल्टीपल नहीं है, सीधी सी बात, दिख रहा है, क्लियर है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो मैंने अभी बात लिखी डेफिनेशन, व्हाट इज इट सेज कि द टू वेक्टर्स व्हिच आर नॉट कोलिनियर देयर स्पैन इज कॉल्ड अ प्लेन। देखते हैं कैसे। अब मैं अगर इसका स्पैन लिखूंगा तो आपको पता है कि स्पैन सेट को हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा 1,0 प्लस बीटा 0,1, 0,1 ये स्पैन होता है। इट इज द स्पैन, है ना, किसी वेक्टर का। अगर मैं मान लो एस से डिनोट कर दूं ये दो वेक्टर्स को 1,0 0,1, तो आई कैन राइट दिस बिग ब्रैकेट, इट इज द सिंबल ऑफ स्पैन। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट अल्फा कॉमा बीटा एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। अब ये बताओ कि ये जो आपने बनाया ये क्या जनरेट करेगा, ये क्या दे देगा आपको? एक प्लेन नहीं दे रहा है ये, सर ये प्लेन देगा, है ना भाई। अल्फा बीटा yes, sir, 0 yeah. लिया मैंने तो 0 हो गया। R2 अगर प्लेन। मैंने अल्फा 1 तो ये पॉइंट हो गया ये। अब मैं अल्फा बीटा को कुछ भी रख सकता हूँ, तो ये आपको सारे पॉइंट यहाँ यहाँ ये पूरा। तो अगर आप देखें ये सेट इनफाइनाइट सेट है, इट इज द प्लेन, द होल प्लेन R2, है ना, कंटेनिंग 1,0,0,1। भाई अल्फा बीटा कैन बी नेगेटिव। अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट जनरेट हो गया, दोनों को पॉजिटिव ले लूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जनरेट हो गया। अगर मैं अल्फा को 0 ले लूंगा तो इट विल जनरेट द वाई एक्सिस। इफ आई विल टेक बीटा 0 इट विल जनरेट द एक्स एक्सिस, है ना। इफ आई विल टेक अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव इट विल जनरेट योर सेकंड क्वाड्रेंट। तो इट इज जनरेटिंग द होल R2। सो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी टू कोलिनियर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो उनका स्पैन क्या करेगा, इट विल गिव यू अ प्लेन थ्रू V1 V2। बात समझ में आ गई क्या कह रहे थे ये? यस सर। हाँ, तो ये बात आपकी। सर अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो जाए तो सर अगर मतलब मोर देन 2 वेक्टर्स अगर गिवन है तो ट्रिपलेट्स अगर गिवन है ट्रिपलेट इसमें तक तो सर हम विजुलाइज कर सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी दे सकते लेकिन हैं आप। उसके बाद फिर नहीं, ये नहीं जो हो पाएगा। डेफिनेशन है ये आपकी R3 R4 सबके लिए ट्रू है, या R2 या V3 कह दूं मैं। V3 में भी ये वही प्लेन ही रहेगा, V4 में भी प्लेन ही देगा, ठीक है भाई। V3 में पॉइंट आप क्या ले लेंगे, 1,0,0, एक पॉइंट और बढ़ जाएगा बस, और वो क्या हो जाएगा 0,1,0। ऐसे तो करोगे अगर V3 का पॉइंट है। तो इट इज ट्रू फॉर V3 V4 आल्सो। लेकिन आप क्योंकि प्लेन ही रहेगा उसमें, बस उसमें क्या होगा, z कोऑर्डिनेट आपका एक फ्री वैल्यू भी आ रहा होगा। सो हियर आई वांट टू लुक द डेफिनेशन ऑफ कोप्लेनर एक्चुअली, इसलिए मैंने ये पहले डेफिनेशन डिफाइन करी है कोप्लेनर। जैसे मैंने कोलिनियर की डेफिनेशन डिफाइन करने से पहले आपकी लाइन की इक्वेशन बताई कि अल्फा v रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसलिए अब मैंने पहले आपको एक प्लेन की डेफिनेशन बता दी इन टर्म्स ऑफ V1 V2, बिकॉज माय नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ कोप्लेनर, डेफिनेशन 3.5.8, है ना। व्हाट इट सेज, थ्री वेक्टर्स V1 V2 and V3 are coplanar if one of them lies, उसमें क्या था, लाइन थी, इसमें क्या हो जाएगा, प्लेन, lies in the plane through the other two, through the other
ठीक है, कोप्लेनर कब होंगे? 3 वेक्टर्स के आपके पास कोई एक वेक्टर जो है, कोई भी ले लें हम आर्बिट्रेरी, v1 ले लें तो वो v2 v3 के पास होने वाले प्लेन से पास होना चाहिए। v2 ले लूंगा तो इट विल पासिंग थ्रू v1 v3, है ना। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, और यू कैन से कि एनी वेक्टर v1 बिलोंग्स टू, ये भी कह सकता हूं क्या? यस सर। है या यस सर। या v2 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ v1 v3, या v3 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ v1 v2। तो कोई एक वेक्टर ऐसा हुआ जो बाकी दो के स्पैन सेट में, स्पैन का मतलब क्या? प्लेन है, मैंने भी आपको बता दिया है ना, बिलोंग कर जाए तो यू कैन से दैट दे आर एलडी। और इसका स्पैन का मतलब ही ये हुआ भाई, स्पैन का मतलब क्या हुआ कि v1 कैन बी रिटन एज अल्फा v2, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स वेक्टर्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ही ये है कि ये आपके इस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? बस। तो मैंने आपको एग्जांपल एक दिया था, क्या नाम है, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक वेक्टर आपको याद हो लिखा था, एक हमने वेक्टर ये लिए थे, क्या था, 1 0 0 2 0 0 था, और एक क्या था, 0 0 1, है ना। तो हमने ये दिखाया था इसमें, मैंने तो चेक करके शो कर रहा था शायद, कि इट वाज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 0 0 प्लस 0 ऑफ, था नहीं था, ये बताओ, चेक कर लो, आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 0 0 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ 2 0 0 एंड 0 0 1। ये हमने चेक सॉल्व करके निकाला था, तो अल्फा हाफ आ रहा था, बीटा 0, है ना। तो इट मीन्स व्हाट, कि ये सेट आपका क्या था, ये सेट एलडी था। समझ में आई बात? डेफिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब कि एल डी एल आई की एक डेफिनेशन हम इन टर्म्स ऑफ, भाई क्लास एंड होगी, आई विल कंटिन्यू द क्लास इन द नेक्स्ट क्लास, आई एम गोइंग टू प्रूव वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, पार्टिसिपेंट्स? यस सर, यस सर। यस Yes, सर। So I am so I am continuing in the next next slide. आप वहाँ ज्वाइन करिए, I am ending this because next theorem I will prove in the next class. All of you please join there. Join the same link. Okay.